Good morning class. Before starting the chapter, I want to remind all the instructions related to COVID-19 like wash your hands regularly, wearing mask whenever you go out from your house, keep distance properly. So follow all these instructions strictly and properly. So let's start the topic today. First of all, I will revise a numerical question related to trial balance. So from the following list of balances, extract from the books of R. David and Sons. Prepare a trial balance as at 31st March 2017. The amount required to balance should be entered as capital. So in this question, we will prepare a trial balance. Trial balance rule is always your debit and your credit columns should be equal. So first, purchase. In the question, stock, opening stock, sales, sundry expenses, leasehold expenses, premises, freehold premises, return inward, furniture, fixture, equipment, repair of equipment, depreciation, proprietor withdrawals, drawings, sundry debtor, creditors, bad debts, investment, interest on investment. These are the transactions which we will use in trial balance. So let's start trial balance. अब बच्चे यहाँ पर देखना है कि कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि मैम हमें ट्रायल बैलेंस का जो कंसेप्ट है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैं एक और क्वेश्चन है जो आपको फिर से यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ. सो देखिए, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ट्रायल बैलेंस का जब मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस का मतलब है कि हमेशा हमें अपने डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स को क्या करना है, इक्वल यहाँ पर करना है. इसी पर फॉर्म पर या इसी बेस पर हम यहाँ पर काम करेंगे. ट्रायल बैलेंस पर्टिकुलर्स फर्स्ट इन द क्वेश्चन. फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेजेस. परचेजेस ऑलवेज यूज इन द डेबिट साइड. परचेज 18,20,000 because this is our assets. Second, stock, opening stock 3,50,000, also in asset side. Stock 3,50,000. Next, sales 40 lakh. Sales 40 lakh in credit side. Next, sundry expenses also are assets. Sundry expenses 15,000. Next, leasehold premises 18 lakh. Freehold premises 18 lakh. In debit side always use all the assets, and credit side always use all the liabilities. Assets, income, assets and liabilities. Next, return inward 25,000 are assets. Return inward 25,000. Next, furniture, fixture, equipment, these are assets also. Repair of expenditure, assets expenditure. Depreciation also are loss. So return inward. Next, furniture. Next is furniture 2,90,000. Equipments 8 lakh. Repair of equipments 5,000. Depreciation 80,000. Next, proprietors withdrawal use also in liability asset side. Drawing, this is also called drawing. Drawing 60,000. Sundry debtor also assets 3,60,000. Debtors 3,60,000. Next, creditor is a liability. Creditors are 1,20,000. Next, bad debts investment also assets. Bad debts investment are 10,000 and 2 lakh.
नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग UTI बैंक आर लायबिलिटीज, लोन and UTI bank amount is 6 lakh, 8 lakh. Both are the liabilities from the bank. Interest on loan 65,000. Interest on loan 65,000. Next, petty cash account asset. Petty cash 400 also asset. Balance at bank, balance at bank. These are balance at the bank 34,600. तो बच्चे यहाँ पर देखिए कि जब हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे तो ट्रायल बैलेंस का एक हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट है या हमारा जो रूल है, ट्रायल बैलेंस का रूल है कि हमेशा आपकी डेबिट और आपकी क्रेडिट जो कॉलम है वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। इसके लिए हमने 3 मेथड मैंने आपको यहाँ पर बताए थे कि ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के टाइम पर हमें यहाँ पर 3 मेथड्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट, टोटल मेथड। इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन में सभी वैल्यूज़ हैं, सभी ट्रांजैक्शंस गिवन है, तो केवल हमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम को इक्वल करना है। कोई भी अमाउंट वहाँ पर ऐसी नहीं है जो आपको गिवन नहीं है। बैलेंस मेथड का मतलब है कि कोई एक ऐसी अमाउंट जो हमसे छूट चुकी है, हमने रिकॉर्ड नहीं की है और जिसकी वजह से हमारे ट्रांजैक्शंस में डिफरेंस आ रहा है, तो वो हमारा मेथड होगा बैलेंस मेथड। टोटल कम बैलेंस मेथड का मतलब है कि जहाँ पर टोटल भी हो रहा है लगभग और कुछ बैलेंस भी आ रहा है अमाउंट का, इसे हम टोटल बैलेंस मेथड कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो आपको दिया था, आपकी NCERT का बुक जो मैंने आपको सॉल्व किया था, दैट क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू टोटल मेथड। कि उस क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या किया कि जो हमारे पास अमाउंट थी उनको हमने इक्वल किया डेबिट और क्रेडिट कॉलम के अकॉर्डिंग। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, दिस इज रिलेटेड बैलेंस मेथड। कि यहाँ पर जो हमारा डेबिट और क्रेडिट कॉलम है वो दोनों इक्वल अमाउंट नहीं आ पा रही हैं और कुछ अमाउंट का जो है डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो इस वजह से ये हमारा बैलेंस मेथड का क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर डेबिट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी रिमेंबर ऑलवेज कि डेबिट में जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। और सेकेंडरी अगर हम इसको यूज़ कर यहाँ पर याद रखना चाहें तो जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी लॉसेस हमें यहाँ पर हुए वो हमारे एसेट्स हैं, जितनी भी इनकम और जितने भी गेन हमें हुए वो सब हमारे लायबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आप इन जो कंसेप्ट है इन सब चीज़ों को याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपको करने में बहुत इजी हो जाएगा। कि जो हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स जो हमारे पास है वो हमेशा हमारी डेबिट है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये खर्चे हमारे हैं तो हमें करने हैं। परचेज, हमने जो सामान खरीदा, सपोज हमने एक लैंड खरीदी, एक बिल्डिंग खरीदी, तो ये हमारे साथ क्या बने, एसेट्स बन गए। अब यहाँ पर हमने इनके लिए क्या किया, खर्च किया, ठीक है। इसी के साथ साथ स्टॉक हमारे पास है तो ये भी हमारा एसेट है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, कोई खर्चा हमने किया तो ये भी हमारे एसेट्स हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कोई हमारी ऐसी है तो वो भी हमारे एसेट्स हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे पास हैं जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। लायबिलिटीज़ की जितनी भी हमने हमारे ऊपर ड्यू अमाउंट है वो बैंक की भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर क्रेडिटर की भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर की भी हो सकती है। तो जो भी पेमेंट हमें पे करनी है किसी अलग आदमी को या जो ड्यू पेमेंट हमारे ऊपर होती है उसे हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। और इसी के साथ साथ जो भी इनकम, अगर कोई इनकम आपको हुई है या कोई गेन आपको हुआ है तो उसको भी आप लायबिलिटी साइड में एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कि यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन थी कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने सपोज बैंक में एक इन्वेस्टमेंट किया था 2 लाख रुपीज़ का और वहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 20,000 रुपीज़ का, बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करके दे रहा है, तो ये आपका क्या बना, ये आपका हो गया गेन। तो इसको भी आप लायबिलिटी साइड में डालेंगे। तो जितने भी एसेट्स, जितने भी एक्सपेंसेस
लॉसेज हैं वो सब हमारे डेबिट साइड में यूज़ होंगे। जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ रिलेटेड टू इनकम और गेन होंगी वो सारी हमारी क्रेडिट साइड में यूज़ होगी। तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम जब इसको टोटल करते हैं तो डेबिट साइड में हमारा टोटल है 64,15,000। तो इसके बाद हम जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और डिफरेंस है 8,75,000, टोटल 64,15,000। तो ये जो हमारा टोटल है यहाँ पे जो डिफरेंस है इसका मतलब किसी यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कहीं पर भी आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वहाँ पर आपने कितना इन्वेस्टमेंट कैपिटल का किया, वो ट्रांजैक्शंस इस क्वेश्चन में इनरोल नहीं है। तो इसका मतलब यही हमारे पास क्या है, एक डिफरेंस वैल्यू क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से हमारा ट्रायल इक्वल नहीं हो रहा है। तो ये हमारी है कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। और नाउ द क्वेश्चन इज इक्वल। तो देखिए दोनों साइड हमारी क्या हो चुकी हैं, इक्वल। सो चिल्ड्रन टुडे अगेन आई विल एक्सप्लेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रायल बैलेंस एंड ऑल्सो डू द प्रैक्टिस फॉर दिस क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन आई एम ऑल्सो explain the errors which we are facing at the time preparing the trial balance। कि जब हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे तो हमें वहाँ पर ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं हो पा रहा है, ट्रांजैक्शंस इक्वल नहीं हो रही हैं, तो उनके रिगार्डिंग हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एरर्स हैं जो हमें फेस करनी होगी। तो उन एरर्स के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। एक बार फिर से उसका रिविजन करते हैं। नेक्स्ट वी विल डू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ एरर्स। First, the errors are divided in 4 categories. First, commission, omission, principal and compensating errors. These are the 4 types of errors we will facing at the time preparing trial balance। कि हमें ये 4 जो errors हैं ये सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी जब हम अपने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे। इनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे, एक बार फिर से इसको देखते हैं। Types of errors. Errors affecting trial balance or errors disclosed by trial balance. The trial balance does not tally. It will indicate that certain error have been committed which have affected the agreement of the trial balance। कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ एरर है उसमें जो हमें रेक्टिफाई करनी है। पहले हमें उसे पता लगाना है, उसके बाद हमें उसको रेक्टिफाई करना है। द अकाउंटेंट विल then proceed to find out the error and ultimately the error will be located. Such error are called error disclosed by trial balance or error which affect the agreement of trial balance. Until such errors are rectified, the trial balance will not agree. Of the examples of such errors are as follow. First, wrong casting. If the total of the cash book or some other subsidiary book is wrong, कि सपोज हमने कैश बुक का हमारा टोटल, सपोज डेबिट साइड में हमारी कैश बुक होती है रिसिप्ट, क्रेडिट, पेमेंट। हमने यहाँ पर रिसिप्ट में टोटल किया 1 लाख रुपीज़ और हमारा क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है 1,50,000। तो इसका मतलब ये रॉन्ग कास्टिंग है। रॉन्ग, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। तो भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज़ बीन एडेड 1,000 इन एक्सेस। कि आपने परचेज बुक की, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर सपोज हमने एक साल में 4 टाइम पर सामान खरीदा तो यहाँ पर हमारे पास 4 ट्रांजैक्शंस तो ऑलरेडी हमारे अकाउंट में है, लेकिन एक और ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो इसका मतलब 1,000 की जो एक्सेस अमाउंट है वो हमारी परचेज बुक में शो होगी। इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है 1,000 in excess when this total will be posted to the debit side of the purchase account. It will be shown an excess debit of ₹1,000 and hence the trial balance will not tally। कि रॉन्ग कास्टिंग, कि हमने क्या किया कि वहाँ पर जो अमाउंट थी वो एक्सेस कर दी। कि हमने सपोज एक महीने में 4 बार परचेजिंग की, हमने 4 पेन खरीदे, लेकिन जो हमारी वहाँ पर शो कर रहा है बुक, उसमें दिखाई दे रहा है कि हमने 5 बार सामान खरीदा। तो इसका मतलब हमारे डेबिट साइड में क्या है, 1,000 या 1 रुपी जो भी अमाउंट है वहाँ पर है वो एक्सेस हो जाएगी और डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। अगर हमने डेबिट की ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन को डेबिट में ट्रांसफ़र किया, तो ये हमारी पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड कहलाएगा।
if instead of posting an amount on the debit side of an account it is posted on the credit side, कि अगर आपको कोई अमाउंट डेबिट साइड में पोस्ट करनी थी लेकिन आपने उसको क्रेडिट साइड में पोस्ट किया, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक रॉन्ग पोस्टिंग हो जाएगी और डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स फॉर ₹2000 हैव बीन परचेज फ्रॉम गोपाल, कि यहाँ पर 2000 रुपीज़ का हमने गोपाल से सामान खरीदा। इफ़ इंस्टेड पोस्टिंग द अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ गोपाल अकाउंट इज posted to his debit, the debit side of trial balance will exceed the credit by 4000। और आपने क्या किया कि यहाँ पर 4000 का हमने उससे सामान खरीदा, लेकिन और हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर ये जनरल एंट्री हम इसकी बनाएं तो गुड्स फॉर 2000 हैव बीन परचेज फ्रॉम गोपाल, गुड्स परचेज 2000 फ्रॉम गोपाल, कि हमने गोपाल से 2000 रुपीज़ का जो है सामान खरीदा है। तो हमारे पास जनरल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट, तो जनरल एंट्री हमारी यहाँ पर ये बननी चाहिए कि परचेज अकाउंट डेबिट, हमने 2000 का सामान खरीदा और किससे खरीदा, गोपाल से, लेकिन आपने यहाँ पर गोपाल को क्रेडिट करने की जगह आपने इसको क्या कर दिया, डेबिट। तो यहाँ पर 2000 की 2 बार ट्रांजेक्शन आपकी तरफ से हुई, तो टोटल यहाँ पर एक्सीड हो जाएगी अमाउंट 4000। Posting the amount on the credit side of Gopal account, it is posted to the debit side. The debit side of trial balance will exceed the credit by 4000. Posting of wrong amount. The trial balance will not tally if the posting in an account is made with an incorrect amount. For example, goods for 600 have been purchased from Mahindra if it has been correctly entered in the purchase book, but while posting to Mahindra credit, the amount posted is ₹60 instead of ₹600। अगर हमने रॉन्ग अमाउंट को ट्रांसफ़र किया है तो भी हमारे ट्रायल बैलेंस में ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, ओमिशन of posting of one side of an entry. For example, if 500 have been received from Ram and correctly entered in the cash book, हमें राम से 500 रुपीज़ रिसीव हुए और हमने अपने कैश बुक में रिसिप्ट साइड में इसको एंटर किया, बट इफ़ इट इज़ omitted to be posted on the credit side of Ram account, trial balance will not tally। लेकिन हमने डेबिट करने की जगह उसको क्या किया, अब राम के अकाउंट में डेबिट करने की बजाय हमने उसको क्रेडिट में किया, तो यहाँ पर भी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। Next, omission of posting of one side of an entry, double posting in a single entry. For example, if ₹500 have been received from Shamlal and correctly entered in the cash book, but if it is posted twice on the credit side of Shamlal account, the trial balance will not tally। कि हमने यहाँ पर श्यामलाल को जो है कुछ पैसे जो हमें उससे मिले हैं 500 रुपीज़, वो हमने कैश बुक में तो एंटर सही किए, लेकिन श्यामलाल के अकाउंट में हमने उसको 2 बार यूज़ किया, तो ये भी यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करेगा। एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर, कि जब हम अपने टोटलिंग जो है लेज़र के वो सब गलत करते हैं, तो जो गलत अमाउंट है वही वहाँ पर पोस्ट होगी, ट्रांजेक्ट होगी, तो ट्रायल बैलेंस वहाँ पर गलत हो जाएगा, वो इक्वल नहीं आ पाएगा। एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनका कोई भी असर ट्रायल बैलेंस को बनाने पर नहीं पड़ता है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस इज़ टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट, कि सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को बनाने का जो एक मेथड है या जो हम बनाते एक रीज़न है वो है कि इक्वल, कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस है, जो डेबिट और क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर वहाँ पे सपोज हमने किसी का नाम गलत लिखा है तो उनसे कोई फ़र्क नहीं, हमें सिर्फ फोकस करना है कि हमारी जो डेबिट और क्रेडिट की जो अमाउंट है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस इज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, द इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मीन दैट देयर आर एब्सोल्युटली नो एरर इन द बुक ऑफ अकाउंट। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई एरर कहीं पर बुक में देखने के लिए ना मिले। देयर मे बी अ number of error which may remain undetected in spite of the agreement of a trial balance. As such, it is true to say that trial balance is not a conclusive proof of the accuracy of the books of account. There are certain errors which do not affect the agreement of trial balance. Such errors are also called limitation of trial balance. These are be discussed as below। कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो अगर यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में हमें मिलती हुई हैं तो उनका कोई असर ट्रायल बैलेंस के टोटलिंग पर नहीं पड़ता। फर्स्ट, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर
compensating error and principal's error. Again I will revise. Omission: if a transactions altogether unrecorded either in the general or in subsidiary book, it will be termed as an error of omission. Such an error will not affect the agreement of a trial balance. For example, suppose goods for 2000 have been sold to Ram on credit and the transaction was omitted to be recorded in the books. दिस ओमिशन विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। कि हमने यहाँ पर जो राम है, यहाँ पर राम को हमने 2000 रुपीज़ का सामान बेचा ऑन क्रेडिट उधार में, एंड द ट्रांजेक्शन्स वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और हमने जो बुक्स में एंट्री की है वो हमने गलत की है। तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं एंट्री जो लिखी है वो अमाउंट तो लिख दी है लेकिन वहाँ पर नाम मेंशन नहीं किया है। तो ये सब एरर्स हैं जिसकी वजह से कोई वहाँ पर क्रिएशन नहीं होगा हमारी डिफरेंस का। Have been sold to Ram on credit and the transaction was omitted to be recorded in the books. The omission will not affect the trial balance in any way because neither has it been recorded on the debit side of Ram account nor on the credit side of sales account. कि ना ही हमने राम अकाउंट के डेबिट में कुछ लिखा है ना ही हमने क्रेडिट साइड में सेल्स में कुछ लिखा है, तो इसका मतलब ट्रांजैक्शंस छोड़ दी है तो वहाँ पर कोई एरर भी क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट, कमीशन। कमीशन का मतलब है इफ़ अ रॉन्ग अमाउंट इज एंटर्ड इन द जनरल और सब्सिडरी बुक। अगर हमने ट्रांजैक्शन जो है रॉन्ग अमाउंट जो है वो गलत एंटर की है अपनी जनरल में भी लेजर में भी, तो इसका मतलब वहाँ पर वो सेम ट्रायल बैलेंस में नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 420 हैज़ बीन एंटर्ड इन द जनरल 240। तो 420 की हमने यहाँ पर सेल की लेकिन एंटर किया 240, तो इसका मतलब यहाँ पर टैली ये ट्रायल बैलेंस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब है कि इफ़ द इफेक्ट ऑफ वन error is neutralized by the effect of some other error, such error are called compensating error. For example, while posting on the debit side of Anil account 50 are posted instead of rupees 500। तो यहाँ पर हमने 50 रुपये की डेबिट ट्रांजेक्शन्स करने की बजाय 500 अमाउंट जो है वो ट्रांजेक्ट की है, तो यहाँ पर भी ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, error of principle. When some fundamental principle of accountancy is violated while recording a transaction, the error is termed as an error of principle. These errors are committed in those cases where a proper distinction between capital and revenue item is not made. Capital expenditure is treated as a revenue expenditure और vice versa। तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये नोट्स में मैंने आपको जो बेसिक टर्म्स लिखवाई थी वहाँ पर आपको लिखाया है विद द एग्जांपल। सो उसको पढ़िएगा। और ये एक बार फिर से आज हमने इसको डिस्कस किया कि एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग, प्रिंसिपल्स, ओमिशंस किस तरह की एरर्स होती हैं और हाउ कैन वी रेक्टिफाई दीज एरर फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।